Hello, good morning, FI Become students. Good morning, ma'am. Happy Good morning, Diwali. ma'am. Good morning. Happy Diwali. Belated. Let's start. Today is busy. Okay. The need for multiple channels of communication. Why it is needed for multiple channels for communication? We will see the next point. The efficient and progressive enterprises uses the multiple channels of communication, both informal and formal. It would be almost suicidal to have only the one channel of communication. This would result in the bottlenecking and definite fall in the level of efficiency as the result of poor information circulation, poor moral, poor worker participation in the decision making. So it is said that in the organization they are using the different kinds of multiple channels of communication. They can't use only that downward communication, or they can't use only that upward communication. They are using all type of that communication. At least they can improve themselves. Okay, do you understand? Do you understand? Yes, Yes, ma'am. okay. Yes, Yes, We ma'am. ma'am. can imagine very low level of communication that could be found in the organization in which manager insist on all the communication being channeled through his office. Overemphasis on the downward communication is one of the major cause of inefficiency in the business. So here it is, you can see that whenever the downward communication is used, it has so many inefficiency in the business. So we can say that they are using the different kind of communication which is more usable and which is more reliable to every person, means to every individual which are who are working in the organization. Just a minute. Okay, next point. To meet the need for multiple channels of communication, the organization set of communication channels. The communication refers to the particular set of person or group within the communication system together, combine, transmit, and manipulate the information. Why that communication is going to be held, the different multiple channels of communication is going to be held, because that whenever the person get together, they combine together, they transmit their ideas, they share their ideas, they manipulate their information. That is the main reason. Three of the better known networks are will network, circular flow network, and free network. So this is more important. You have to remember this. Which are this kind of the three networks? That is, first one is will network, then circular flow network, and free network. The will network is formal structure in which organization is broken up into the small group for the communication. So this kind of the network communication, that particular group of the person are working together. Okay, then the circular network makes the provision for each person communicating with two of his immediate neighbors. So circular communication or circular network, it provides that every individual to talk with his neighbor. And the free flow pattern, the setting of the such networks of communication, the management should see it that the multiple channels, the network do not result in over communication. That here you can see that last wala, that free flow network means the management also are going to talk with the workers, but it doesn't mean it may be caused to every person. Okay, sometimes it happens that the workers are taking disadvantages of this kind of the particular network. तो उसकी वजह से क्या होता है कि इतना जरूरी नहीं है कि वहाँ पे जो इस्तेमाल किया जाता है, फ्री फ्लो नेटवर्क इस्तेमाल किया जाता है, तो उसका डिसएडवांटेज लिया जाए. समझ में आया? डू यू अंडरस्टैंड? यस और नो? डू यू अंडरस्टैंड ना मैम, फिर से बताइए. फिर से बताइए ना मैम. that downward network? Sorry, for Yes, example, ma'am. management they are going to talk with the neighbors. Sorry, management they are going to talk with the workers. Am I right? In sometimes.
Am I right? Here three Yes, types ma'am. of the networks are given. First is given wheel network, second is given circulate network, and third one is given free flow network. Free flow network means every person can talk with everyone, okay, freely. But sometimes the person are taking disadvantage of this particular communication. So it does not result in over communication. फ्री फ्लो, फॉर एग्जाम्पल जैसे क्लास में आप सभी से बात करते हैं, आपके फ्रेंड्स के साथ बात करते हैं, लेकिन कुछ लोगों के साथ आप इतना फ्रीली बात नहीं कर सकते. समझ में आ रहा है कि फॉर एग्जाम्पल आपके टीचर्स के साथ कि जितना थोड़ा सा एक लिमिटेशन आ जाता है, मैं बता रही हूँ, समझ में आ रहा है, जितना एक लिमिटेशन आप आ Yes, ma'am. जाता है अपने Yes, फ्रेंड्स के ma'am. साथ जैसे फ्री फ्लो में बात करते हैं, वैसे आप टीचर के साथ इतना फ्री फ्लो में बात नहीं कर सकते, और टीचर भी आपके साथ इतना फ्री फ्लो में बात नहीं कर सकते. डू अंडरस्टैंड राइट नाउ? Yes, ma'am. ओके, Yes, आगे का ma'am. पॉइंट देखते हैं. यहाँ पे देखिए आपको टाइटल दिखा दे, द ब्रेकडाउन ऑफ हायरार्की, द मॉडर्न ट्रेंड. Okay, so far in this chapter we have dealt with the communication with the organization which is structured according to the traditionally hierarchy. The student must know, however, that in economically advanced countries there is a tendency for this hierarchy to collapse. This trend is not yet very obvious in the countries like India. If is the group and have begun to bypass their superiors and have started communicating directly with the concerned parties. So here it is said that whenever we are talking about the communication in this particular chapter, that communication at the workplace, so this kind of the trend or this kind of the trend, the communication in the organization or communication in the workplace, this is called the traditionally hierarchy. Okay, means it goes from one place to another place, or it goes from one generation to another generation. So this kind of the communication is not still started in our India, but it start begin. It is passing by from superior to another person. कि यहाँ पे हमारे इंडिया में ये इसको हम बोलते हैं कि जैसे कम्युनिकेशन एट वर्क प्लेस, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन, डायगोनल कम्युनिकेशन. ये जो कम्युनिकेशन की हम जब अभी तक बात करें तो वो ट्रेडिशनली हायरार्की की बात करें. ट्रेडिशनल हायरार्की मीन्स एक से दूसरे के पास, दूसरे से तीसरे के पास हो जाता है. लेकिन हमारी इंडिया में अभी तक ये ट्रेडिशन इतनी वेल डेवलप नहीं है, क्योंकि कोई भी कंपनी इतना वेल डेवलप नहीं है. अभी स्टार्ट हुआ है, सुपीरियर से स्टार्ट होता है और वर्कर तक वो पहुंचता है. तो अभी जब हम बात करें तो इतना कम्युनिकेशन जो लेवल है इंडिया की इंडस्ट्री में, इतना लेवल थोड़ा कम है. समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? Yes, यस और ma'am. नो? Yes, ma'am. ओके, आगे Yes, का ma'am. देखिए, यहाँ पे एक आपको एग्जांपल दिया है. फॉर एग्जांपल, इफ इन अ फैक्ट्री, द लेबोरेटरी और ऑफिस एम्प्लॉय फाइंड्स दैट द पर्टिकुलर मशीन इज नॉट वर्किंग, ही डज नॉट रिपोर्ट टू द सुपीरियर बट डायरेक्टली कॉन्टेक्ट टू द रिपेयर टीम. ओके, तो ये क्या हुआ, उसका मतलब क्या कि फॉर एग्जांपल इफ वर्कर्स आर वर्किंग एट दैट लेवल एंड दे नो दैट व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द मशीन इन लेबोरेटरी व्हाटएवर. I think this point is already done in the last 2 weeks, before 2 weeks. Okay, but I will repeat. I will stop here. I will finish the passage and I will stop there. तो यहाँ पे ऐसा बताया कि अगर कोई वर्कर कंपनी में काम करता है या लेबोरेटरी में काम करता है, तो वो जो मशीन के साथ काम करता है, तो मशीन का क्या प्रॉब्लम है और क्या नई प्रॉब्लम है ये उसको पता रहता है. तो वो डायरेक्ट सुपीरियर से बात नहीं करेगा. वो क्या करेगा, वो रिपेयर टीम होती है ना, जैसे रिपेयर करने वाले होते हैं, उसको डायरेक्ट कांटेक्ट करेगा. क्योंकि क्या ऐसा क्या होता है कि फॉर एग्जांपल उसने सुपीरियर को बताया, फिर सुपीरियर मैनेजर को बताएगा, सुपरवाइजर मैनेजर को बताए, तो उतना टाइम उसमें लग जाएगा. तो उसको टाइम बचाने के लिए, अपना काम न रुकने के लिए, वो क्या करता है, डायरेक्टली टीम वर्कर से या टीम रिपेयरमैन से बात करता है. डू अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. डू अंडरस्टैंड? Yes.
आपको एक Yes, बात ma'am. और बता दूं कि आपकी Yes, एग्जाम कभी भी हो सकती है कि दिसंबर, या तो उसके लिए आप जरा रेडी रहेंगे, क्योंकि अभी सिलेबस है और आपको बहुत सारा मेहनत करना है, बहुत सारा काम भी करना है। तो जितना ज़्यादा हो सके, जितना बच्चा अटेंड लेक्चर करे तो वो अच्छा होगा आपके लिए। दूसरा एक बात है कि मैं एफसी का मैं आपको मंडे को बताऊंगी किस तरह से क्या लिखना है, क्योंकि वो आपका इंटरनल रहता है। इंटरनल मेरे हाथ में रहता है। समझ में आ रहा है? डू अंडरस्टैंड? यस और नो? yes, हाँ, ma'am. Yes, ma'am. वो सबको कंपलसरी है। अगर उसमें कैसा होता है कि फॉर एग्जांपल आप एक्सटर्नल में पास हो गए, थियरी में पास हो गए, लेकिन इंटरनल आपने सबमिट नहीं किया प्रोजेक्ट, तो भी फेल ही हो गए आप, तो भी फेल ही होगा, वहाँ पे केटी लगेगा। तो इंटरनल भी जरूरी है और एक्सटर्नल भी जरूरी है। समझ में आ रहा है ना? तो मैं मंडे को इस पे बात करती हूँ, ठीक है? मंडे Yes, पे इस ma'am. पे Okay. बात करते हैं, Yes, आगे ma'am. बात करते हैं। In his book, The Future Shock, Alvin Toffler reports this new trend in the following words. The physicists, computer programs, engineers, such men are assuming the new decision-making function. At the one time, they merely consulted with the executives who reserve unto themselves the right to managerial decision. Today, the managers are losing their monopoly in the decision making. So here it is said that in some companies, for example, here that physicists, computer operators or engineers, this kind of the person, they are not taking the they are not taking the help of supervisors or superiors. They are not taking the help of managers. They directly contact to that team requirement and they try to solve the problem by themselves. So it is said that here that managers are losing their monopoly in the decision making team. Do you understand? Do you understand? Do you No, understand? ma'am. No, ma'am. No, ma'am. यहाँ पे क्या बताया, जैसे अगला पॉइंट है, लेबोरेटरी है, फैक्ट्री है, ऑफिस में मशीन के साथ काम करने वाले। समझ में आ रहा है ना? मशीन के साथ काम करने वाले Yes, इंसान। ma'am. तो मशीन के साथ काम करने वाले, जिसका मशीन के साथ ज़्यादा लेन देन होता है, वो कैसे इंसान हो सकते हैं? तो वो शायद फिजिसिस्ट हो सकते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर्स हो सकते हैं, इंजीनियर्स हो सकते हैं। तो ये जो इंसान है, उन्होंने अपना क्या मोनोपोली तय किया है कि बाबा कोई भी मशीन में गड़बड़ हो गई तो वो मैनेजर को डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं करेंगे। वही पॉइंट यहाँ पे रिपीट होता है। वो डायरेक्टली कहाँ पे पॉइंट आउट करेंगे, कहाँ पे वो कांटेक्ट करेंगे, कहाँ पे वो कांटेक्ट करेंगे? टीम रिपेयरमेंट होती है ना, जो मशीन रिपेयर करके देता है। यस और नो? Yes, ma'am. हाँ, Yes. उनसे उनके साथ Yes, ma'am. कांटेक्ट करेंगे। तो उसकी वजह से क्या बताया गया है, एक अल्फ्रेड टॉफलर है, उन्होंने अपने बुक में ये बताया है कि जो फिजिसिस्ट है, कंप्यूटर ऑपरेटर्स है, इंजीनियर्स है, ये लोग हैं अपना डिसीजन मेकिंग खुद बनाते हैं कि मुझे क्या करना है। कि ज़्यादातर आप देखिए, फॉर एग्जाम्पल जब भी हमारे घर में कोई भी चीज़ बिगड़ जाती है या कोई भी चीज़ में, फॉर एग्जाम्पल किचन से रिलेटेड होगा, ओके, किचन से रिलेटेड होगा तो हाउसवाइफ क्या करेगी? हाउसवाइफ क्या करेगी? हाउसवाइफ क्या करेगी? फॉर एग्जाम्पल अलोन, अकेली लड़की है, अकेली औरत है, अगर उसको कुछ प्रॉब्लम हुआ तो वो खुद ही हैंडल करेगी ना, खुद ही हैंडल करेगी ना? Yes, यस और ma'am. नो? कि फॉर एग्जाम्पल उसके Yes. घर में कोई गैस लीकेज हो रहा है, उसके घर में नल का प्रॉब्लम है, तो उसके पास सबके नंबर होने चाहिए अगर अकेली औरत है तो। एम आई राइट? Yes, Yes, हाँ, ma'am. ma'am. औरत अकेली रहती है, हस्बैंड नहीं है, तो उसको, अगर हस्बैंड वाइफ दोनों रहते हैं, घर में बड़े रहते हैं, तो वो किसी का मदद जरूर लेगी वहाँ पे। ठीक है, हस्बैंड का मदद लेगी, हस्बैंड को पूछेगी इसका क्या करना है। वहाँ पे यही बात यहाँ पे रिपीट होती है कि जो ये टाइप के जो इंसान है, कंप्यूटर ऑपरेटर से, तो वो डायरेक्टली कांटेक्ट करते हैं। ये सिंपल सा पॉइंट है, उसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। वो डायरेक्टली कांटेक्ट करते हैं, दो दे आर वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन, दे आर नॉट टेकिंग द हेल्प ऑफ मैनेजर। ओके, अपने हिसाब से वो निपट लेते हैं। समझ में आ रहा है? Yes, समझ ma'am. में आ रहा है? ओके, Yes, Yes, ma'am. ma'am. आगे का पॉइंट देखते हैं। The trend described in the last paragraph is the result of specialization and the employment of experts
by modern business houses. Another result of employment of the specialists in the business is that the old system of the loyalty to the institution is breaking down formally, and employee was proud of working in one company till the day of retirement. तो उसकी वजह से क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल दैट लास्ट पैराग्राफ दैट वी हैड सीन दैट the computer programs programmers or the physicists or that we can say that engineers, this kind of the persons are too much expert and they are taking decision themselves. So as a result, here we can say that the specialization function is seen in the old system, कि पहले किसी को पूछा जाता था लेकिन अब अपने हिसाब से चलते हैं, तो उसमें थोड़ा सा चेंज आता है और वहाँ पे स्पेशलाइजेशन दिखाई देता है। कि फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर हमारे घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, नल की प्रॉब्लम हो गई है, तो हम किसको कांटेक्ट करेंगे? प्लम्बर को ही कांटेक्ट करेंगे ना, उसके एक्सपर्ट होंगे उसको ही कांटेक्ट करेंगे ना। यस और नो? यस और नो? अगर हमारे Yes, घर में नल की Yes, प्रॉब्लम हो ma'am. ma'am. गई है तो उसको रिपेयर करने वाला उसके एक्सपर्ट को ही बात किया जाता है ना, उसके एक्सपर्ट के साथ ही बात किया जाता है। दूसरा आपको एग्जांपल कि फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक से लेके कोई भी प्रॉब्लम है तो हम किसको कांटेक्ट करते हैं? उस पर्टिकुलर एक्सपर्ट को हम कांटेक्ट करते हैं। समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. हाँ, वही बात यहाँ पे बताई गई है। ओके, आगे का देखते हैं। Today, if an expert public relation man or engineer works for long years in only one company, he is considered enterprising. Loyal to be to the profession rather than the organization is the order of the day. Chartered accountants, computer programs, engineers, even the typists and salesmen have closer ties with other members of the same profession in other companies than with that their colleagues in the same organization who belong to the different fields of specialization. In this men and women are outsider working temporarily within the system of the company. तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल लॉयल्टी नाम की कोई चीज़ होती है। लॉयल्टी नाम की चीज़ होती है कि नहीं, कि मैं यहाँ पे बरसों से काम कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे लॉयल होना चाहिए कोई भी रिलेशनशिप में। समझ में आ रहा है? लॉयल्टी, ऑनेस्टी, कि मीन्स यहाँ पे मैं बहुत सालों से काम कर रहा हूँ तो मेरा कुछ जिम्मेदारी बनता है। यस और नो? Yes, ma'am. Yes, हाँ, ma'am. तो इसकी वजह से क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अभी जो ट्रेंड बदल रहा है, जो पास्ट का जो ट्रेंड था और अभी का जो ट्रेंड बदल रहा है, तो उसमें ज़्यादा डिफरेंस दिखाई देते हैं। कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कंप्यूटर प्रोग्राम्स है, इंजीनियर्स है, टाइपिस्ट है, सेल्समैन है, वो भी अपने जो हम बोलते हैं कि उसके एक्सपर्ट के साथ उतना ही कनेक्टेड रहते हैं, लेकिन अपने कलीग से नहीं, जो दूसरी कंपनी में काम करते हैं उससे ज़्यादा कनेक्ट रहते हैं। कि कभी कभी ऐसा दिखाई देता है कि कंपनी में यूनिटी नहीं दिखाई देती, टैलेंट है सबके पास पर यूनिटी नहीं दिखाई देती, तो क्या होगा? कंपनी जल्दी से जल्दी क्या हो जाएगा? कॉलेप्स होता जाएगा। कि फॉर एग्जांपल जब हम मिलजुल के काम करते हैं वो तभी काम इतना अच्छी तरीके से होता है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. और Yes, ma'am. ज़्यादातर कंपनी में Yes, ma'am. जो हम बोलते हैं कि जो प्रोफेशनलिज्म है या प्रोफेशंस है, जो पर्टिकुलर हम बोलते हैं कि पर्टिकुलर लोग होते हैं कि जैसे टाइपिस्ट है या पोस्टमैन है, पोस्टमैन नहीं, टाइपिस्ट है, सेल्समैन है, वो आउटसाइडर ज़्यादा रहते हैं, आउटसाइडर के रहते हैं, मीन्स उस कंपनी के नहीं रहते, दूसरे कंपनी के रहते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है, कंपनी में ये सब कुछ टेम्परेरी चल रहा सिस्टम होता है। कि फॉर एग्जांपल सेल्समैन है तो अपनी कंपनी का सेल्समैन नहीं है, दूसरी कंपनी का सेल्समैन है, उसको पैसा ज़्यादा देना पड़ता है। समझ में आ रहा है? अपने कंपनी का Yes, काम ma'am. करने के उसको पैसा क्या देना पड़ता है? ज़्यादा देना पड़ता है। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है। बिजनेसमैन मीनू पटेल बिलीव्ड इन मूविंग with the times. He installed a large number of the companies. He installed a large number of computers in his office in Mumbai and Bangalore, which is
which he constantly kept upgrading. The Mumbai office showed the immediate and spectacular result, but at the Bangalore office, things seems to be going to be reserve gear, and work has been very slower than when it was done with the pens and natural typewriters. तो यहाँ पे दो एग्जाम्पल दिए गए हैं that one of the businessman Minu Patel, he installed that number of computer in his office, that one place is Mumbai and one place is Bangalore. In Mumbai the work is going very properly, constant, and in Bangalore that work is not going properly. What is the reason? We will see that it took Minu Patel 10 days and a personal visit to the Bangalore to find out the cause. The chief manager Mukesh Shetty insisted on all the computer breakdowns and malfunctions to be repeated to him through the section heads of on the prescribed forms, which he would not be or he would be then the process and send them hardware services centers. As a result of this, it sometimes took 5 days to get computer working again. At Mumbai office, on the other hand, manager Hoshi Irani refused to entertain complaints to the non-functional computers. It was responsibility of each computer operator to contact the hardware people and get the things going in easy case of breakdown. So in one company, Bangalore's company, whenever that Minu Patel visit Bangalore, he will see that the chief manager Mukesh Shetty, he takes the time to solve the problem because the malfunctions and the computer breakdowns to be reported to the head at the but head is not working proper there. Okay, so what's the reason or what's happened? The work is going to be delayed. But on the other hand, we will see in the Mumbai that the manager who is particular, see that we can see the name of manager Hoshi Irani. He refused to entertain every पर्टिकुलर पर्सन कि यहाँ पे हर एक इंसान को या हेड को यहाँ पे एंटरटेन नहीं करना है. जो कंप्यूटर ऑपरेटर है तो उसको खुद को पता होना चाहिए कि उसके हार्डवेयर में या सॉफ्टवेयर में क्या प्रॉब्लम है, तो डायरेक्टली वो टीम रिपेयरमेंट से बात करेगा. तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, टाइम भी बच जाता है और काम भी जल्दी से होता है. समझ में आया? Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. आगे का पॉइंट देखते हैं. एक्सटर्नल कम्युनिकेशन. अभी एक्सटर्नल कम्युनिकेशन किसको बोलते हैं? The external communication of business organization takes two forms. तो external communication के two forms है. The first one is outward communication. Outward, the business organization has to communicate with the numerous people and the parties that are outside, namely the customers, banks, government officials, and the post office, insurance companies, and police and municipality, etc. Usually, it has a structured system of networking to communicate with the outsider. Communication can take the form of sending letters, telegrams, phone calls, or company can use the mass media like newspaper, radio, and television. Okay, outward means those who are not working in the company. Those who are not working in the company has to talk with the other people like municipality, police station, insurance company, post office, customers, banks, government officials. So company has to talk with all this kind of the people. Okay, so what is the form or what is the structure of this particular system to talk with this kind of the people? That the system is that sending letters, telegrams, phone calls, or they are also using the newspaper, radio, and other sources to communicate the outsiders. Do you understand or not? Do you understand? No, ma'am. यहाँ पे क्या बताएं? आउटवर्ड मतलब क्या? आउटवर्ड, ये पॉइंट समझ में आते हैं. आउटवर्ड,
जो कंपनी में काम नहीं करता है, कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन में वहाँ पे बैठ के काम नहीं करता है, तो कंपनी के जो इंटरनल होते हैं, जो एम्प्लॉयज होते हैं, उनका इंटरनल कम्युनिकेशन है। अभी यहाँ पे एक्सटर्नल मीन्स बाहर के, तो वो कंपनी किस तरह से किस लोगों से बात करते हैं, तो कंपनी फॉर एग्जांपल कंपनी को सिर्फ अपने इनवर्ड कम्युनिकेशन से काम नहीं चलाना है, वहाँ पे उनको एक्सटर्नल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करना चाहिए। तो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करने के लिए आउटवर्ड में कौन कौन आते हैं कि फॉर एग्जांपल कस्टमर्स आते हैं कंपनी में कस्टमर्स आते हैं कि नहीं आते हैं? कस्टमर्स Yes, होते ma'am. हैं, इंश्योरेंस कंपनीज वाले होते हैं, पुलिस वाले होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वाले होते हैं, म्यूनिसिपैलिटी, बहुत सारे लोग आते हैं। तो उनके साथ बात करने के लिए कंपनी का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है। वो स्ट्रक्चर कौन सा होता है कि वो किस तरह से बात करते हैं इन सब से, तो लेटर से बात करते हैं, टेलीग्राम से बात करते हैं, या फ़ोन कॉल करते हैं, या फिर उनको मेल भेजते हैं, या न्यूज़पेपर, रेडियो, टेम्पलेट्स, ये सब इस्तेमाल करते हैं। अभी समझ में आया? अभी समझ में Yes, आया? ma'am. ओके। Yes, ma'am. Communication with outside world may also be informal. Any member of organization has many opportunities to talk about it in formal gatherings. Consciously or unconsciously, he or she may pass favorable or unfavorable message about the organization. It may be in the form of chants, remark, or body gestures, or vocal sounds and expression the positive appreciation. सो जब भी हम आउटसाइडर से बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे हमने अगले पॉइंट में देखा कि जो कुछ एक्सपर्ट होते हैं कंपनी के, ओके, फॉर एग्जांपल कोई भी एक्सपर्ट होता है तो अपने कलीग से ज़्यादा कनेक्ट नहीं होते, लेकिन आउटसाइड कंपनी के या दूसरी कंपनी में काम करने वाले कलीग से ज़्यादा, या दूसरी कंपनी में काम करने वाले इंसान से वो ज़्यादा कनेक्ट होता है। तो कभी कभी ये जो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन हो जाता है वो कैसा हो जाता है, इनफॉर्मल, दोस्त जैसा हो जाता है कि जैसे हम दोस्तों से बात करते हैं वैसे। तो वो हमेशा कि जहाँ पे भी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है तो वहाँ पे क्रिटिसिज्म भी होगा, पॉजिटिव्स भी होगा, नेगेटिव्स भी होगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा Yes, है? ma'am. पॉजिटिव भी बात कर सकते हैं, नेगेटिव भी बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे कंपनी में ऐसा है, हमारे कंपनी में हमारा बॉस ऐसा है, मेरे कलीग्स ऐसे हैं, ऐसा कुछ भी बात हो सकता है। समझ में आ रहा है ना? Yes, ma'am. Okay, such informal communication often creates an image of organization in the public mind. कि जो आप जिस कंपनी में काम करते हैं, अगर उसका इमेज आपको ठीक बनाना है तो आपको कैसा बात करना चाहिए, पॉजिटिव बात करना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर नेगेटिव बात किया जाता है, तो उसकी वजह से एक इमेज जो कंपनी का होता है वो खराब हो जाता है मार्केट में। टॉप मैनेजर यूज द इनफॉर्मल एक्सटर्नल कॉन्टेक्स्ट टू इम्प्रेस द आउटसाइडर। जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स होते हैं या टॉप एक्सपर्ट्स होते हैं तो उनको अपना ऑर्गेनाइजेशन का इमेज अच्छा बना है, क्योंकि वहाँ पे उनको काम करना है। अगर कंपनी में वो काम करते हैं तो वो क्या सोचते हैं कि मैं अपना कंपनी का जितना अच्छा ज़्यादा इमेज बनाऊंगा मार्केट में उतना कंपनी को फ़ायदा होगा, और जितना कंपनी को फ़ायदा होगा तो उसको फ़ायदा होगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. ओके। टू मैनेजर्स टॉप, हाँ सॉरी, so speeches by the company officials and visits to the chambers of the commerce and other public bodies are the ways in which company communicates with the outsider public. All this is done not only to earn profits but also that implant the favorable image of the company in the mind of the people. Advertising is the most structured टाइप ऑफ द एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स होते हैं या टॉप मैनेजर्स होते हैं या टॉप एक्सपर्ट्स होते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कंपनी का इमेज कैसे बनाने की कोशिश करते हैं, अच्छे बनाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से सिर्फ प्रॉफिट कमाना वो उनका उद्देश्य नहीं होता है, लेकिन कंपनी का एक इमेज मार्केट में खड़ा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। समझ में आ रहा है? Yes, समझ में आ ma'am. रहा है? फॉर एग्जाम्पल आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल देती हूँ कि हमारे यहाँ पे फॉर एग्जांपल बहुत सारी दुकान है कि नहीं, कि फॉर एग्जांपल सोने चांदी की दुकान है, कपड़ों की दुकान है, चप्पल की दुकान है, बहुत सारी दुकान है। ओके, तो वो वहाँ पे जो नौकर वगैरह हम बोलते हैं कि वर्कर्स वगैरह काम करते हैं जिस दुकान में, अगर यहाँ पे उनका भंडाफोड़ दिया मार्केट में कि यहाँ पे ऐसा कि हमारी दुकान में ऐसा चल रहा है, हमारी दुकान में ऐसा चल रहा है,
तो दुकान की इमेज में इम्पैक्ट होगा, मार्केट में लोगों को पता चलेगा, ना यहाँ पे चीटिंग Yes, किया ma'am. जाता है। ओके, अगर चीटिंग किया जाता है तो लोग आना जाना चाहेंगे या बंद कर देंगे? बंद करेंगे। बंद करेंगे। तो उनकी बंद कर- सैलरी निकलेगी? नहीं निकलेगी। हाँ, तो कुछ नहीं। बातें सीक्रेट रखनी चाहिए। कुछ बातें क्या होनी चाहिए? सीक्रेट होनी चाहिए। जहाँ पे भी आप काम करते हैं तो वहाँ पे हमेशा आपको बनाए रखना है, आप उसका इमेज आपको बनाए रखना है। यस और नो? Yes, यस और ma'am. नो? उसका जितना इमेज आप बनाए रखिए, ये बात हमेशा याद रखिए, क्योंकि अभी 5-6 साल के बाद हमको ये ज़रूरत होने वाली है, 4-5 साल के बाद आपको ये ज़रूरत पड़ने वाली है। किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो उसका इमेज आप खराब नहीं कर सकते, क्योंकि कंपनी आपको पैसा देता है। कंपनी का इमेज खराब हुआ, मीन्स हम बोलते हैं ओनर का नुकसान हुआ, तो आपका भी नुकसान होता है। समझ में आ रहा है? ओनर का Yes, नुकसान ma'am. हुआ तो आपका भी नुकसान होता है। सिंपल सा एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल है हमारे यहाँ पे, आपको फॉर एग्जांपल बुक स्टॉल्स है कि नहीं? हमारे दापोले में बहुत सारे बुक स्टॉल्स है ना? Yes, बहुत ma'am. सारे बुक स्टॉल्स हैं। Yes, उसमें ma'am. जो फॉर एग्जांपल जितना जैसे मैंने आपको पहले बताया था, कम्युनिकेशन जो पहला पॉइंट था, कि जहाँ पे जितना ओनर उस पे ध्यान देता है अपनी दुकान में, उतना नौकर शायद हमको मिले ध्यान देने वाला। समझ में आ रहा है? जो वर्कर्स होते हैं Yes, उतना ma'am. ही ध्यान देने वाला मिले, नहीं तो क्या होता है, उनका क्या होता है, माइंडसेट कैसा होता है, हमारा क्या रहता है, हमको तो सैलरी मिलने वाली है ना, एम आई राइट? हमें तो Yes, सैलरी ma'am. मिलने वाली है, तो हमें क्या जाता है, अगर एक कस्टमर चला गया तो हमें क्या जाता है, लेकिन उनकी ये सोच बदलने का थोड़ा सा जरिया हमको बना के, अगर कस्टमर वापस जाता है तो वो आपकी सैलरी पे भी इफेक्ट होता है, बोनस पे भी इफेक्ट होता है, एम आई राइट? तो हर एक कस्टमर को किस तरह बनाए रखना है, ये नौकर और सेठ दोनों के हाथ में है। समझ में आ रहा है? बॉस और एम्प्लॉय दोनों के हाथ में है। अभी समझ में आ रहा है क्या? Yes, ma'am. ओके, आगे का पॉइंट देखते हैं। अभी इनवर्ड देखिए, inward external communication is said to take place when the organization receives the letters, telegrams, phone calls and visit from the outside person. All this must be carefully taken the note of attended to. Inward and external communication is basically the feedback that company receives all that it has been doing and saying. तो जैसे एक्सटर्नल में हमने आउटवर्ड देखा, तो आउटवर्ड में वो क्या करते हैं, टेलीग्राम्स भेजते हैं, फोन कॉल्स भेजते हैं, फोन कॉल्स करते हैं, एडवर्टाइजिंग करते हैं, उसका फीडबैक उनको इनवर्ड में मिलता है। इनवर्ड में अगर आप कंपनी में काम कर रहे होते हैं, आपका कंपनी से लेके या कंपनी से कुछ रिलेटेड मशीन से लेके कोई बात हुई है, तो मशीन से लेके कुछ और मशीन्स मंगवानी है, तो आपको जिस कंपनी से आप बात करते हैं, तो वो मशीन भेजने के बाद ही आपको पता चलेगा ना, मशीन भेजने के बाद ही आपको, आपकी कंपनी में मशीन भेजने के बाद ही आपको पता चलेगा ना कि हाँ बाबा Yes, ये ma'am. फीडबैक अच्छा है कि नहीं है, या उनका आपके साथ व्यवहार कैसा है। समझ में आ रहा है? Yes, समझ में आ ma'am. रहा है? फॉर एग्जाम्पल एक आपको सिंपल से एग्जाम्पल दूँ, Yes, ma'am. तो अभी सभी देशों में, फॉर एग्जाम्पल हमारे भारत देश से लेके चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, सभी देशों में थोड़ी सी अनबन चल रही है, थोड़ी सी अनबन चल रही है, यस और नो? Yes, Yes, ma'am. ma'am. चल रही है, ओके। तो क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं सभी, हम क्या कर रहे हैं, हमने संबंध तोड़ दिए क्या सबके साथ? चीन ने जितना घोटाला किया, चीन फ्रॉड है, सभी को पता है, लेकिन उसके साथ थोड़ा सा तो रिलेशन रखा है कि नहीं रखा है? रखा है ना, रखा है Yes, ना? ma'am. Yes, क्योंकि ma'am. जितना भी हम मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स जो भी हम इस्तेमाल करते हैं, वो कहाँ से आता है, कहाँ से आता है? China से. चाइना से आता है। चाइना से। हाँ, उसका जो जो उसका हम बोल रहे हैं कि जो हम बोल सकते हैं कि अदर एप्लीकेशन है जो मोबाइल में, जिसका हमको कोई इस्तेमाल ही नहीं, उसको हमने डिलीट कर दिया, एक हिसाब से उसको हमने डिलीट कर दिया। मीन्स जितना मोनोपोली उतना हमारा स्ट्रांग होगा, उसका उस पर इफेक्ट होगा। चाइना का आपको पता है कि जो चाइना के लोग हैं, वो कोई व्हाट्सअप ही यूएसए का है,
कोई अमेरिका का कोई एप्लीकेशन वो इस्तेमाल नहीं करते, वो खुद का एप्लीकेशन इस्तेमाल करते, अपने देश का बनाया हुआ इस्तेमाल करते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, जैसे बीच में चल रहा था ना, स्वदेशी चीज़ें अपनाओ, स्वदेशी चीज़ें अपनाओ। हाँ, तो जितना ज़्यादा हम अपने देश को सपोर्ट करेंगे, उतना पैसा कहाँ रहेगा, उतना पैसा कहाँ रहेगा, अपने देश में रहेगा। अपने देश में अपने रहेगा। देश वही में। वही बात हुई ना कि फॉर एग्जांपल कोई कंपनी में हम काम करते हैं तो उसको लॉयल रहना चाहिए। ओके, तो जैसे कंपनी का कोई भी, जब हम टेलीग्राम वगैरह भेजते हैं, फ़ोन कॉल भेजते हैं, तो उसका जब फीडबैक आता है कि हाँ हमने माल भेज दिया है, तो उसका तभी पता चलता है कि हाँ वो कंपनी रिसीव करती है, और उसके बाद उसका डीलिंग होता है कि हाँ माल ठीक से आया है कि नहीं आया है, या कुछ कमी है या कुछ डिफ़ॉल्ट है, ये वहाँ पे पता चलता है। समझ में आ रहा है? यस मैम। ओके, आगे का पॉइंट देखते हैं। ये देखिए, मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन दिखाई देता है आपको, चार्ट दिखाई दे रहा है। यस मैम, दिख रहा है। यस मैम। यहाँ पे एक जगह पे दिखाई देता है वर्बल, और दूसरी जगह पे है नॉन वर्बल। वर्बल में है ओरल और रिटन, और नॉन वर्बल में आता है बॉडी लैंग्वेज, स्पेशियल एंड साइन लैंग्वेज। तो उसको हम बोलते हैं प्रोक्सिमिक्स। आगे का हम पॉइंट देखते हैं, प्रोक्सिमिक्स बोलते हैं, फिर काइनेटिक्स बोलते हैं, और साइन लैंग्वेज। ओके, तो सबसे पहले हम वर्बल कम्युनिकेशन की बात करते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन मतलब क्या? Since the businessman has a choice in selecting the forms of communication, he should make the choice keeping in the mind following. That first is speed transmission, then cost of transmission, accuracy, favorable environment, maintaining confidentiality. Then next point is preservation of the copies or duplicate material, and the provision for the feedback. तो जो हम मैनेजर या बिजनेसमैन होता है, तो वो वर्बल और नॉन वर्बल ये दोनों कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करता है। ज़्यादातर हम जब बोलते हैं साइन लैंग्वेज का कम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वर्बल, तो वर्बल में वो किस तरह से कम्युनिकेशन करते हैं, तो उनका जो कम्युनिकेशन का जरिया है वो कैसा होता है। एक तो स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन। स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन मतलब क्या, कि जब भी वो कम्युनिकेशन करते हैं, कि फॉर एग्जांपल फ़ोन कॉल से नहीं हुआ बात, तो जल्दी से वो जल्दी क्या इस्तेमाल करेंगे, ईमेल। क्या इस्तेमाल करेंगे कि फॉर एग्जांपल मैसेज भेजना चाहिए, मैसेज वहाँ पे मिलना चाहिए, तो ईमेल का इस्तेमाल करेंगे। फिर दूसरा है कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन, किस तरह से क्या करना है। ओके, ट्रांसमिशन किस तरह से करना है, फॉर एग्जांपल पैसों की लेन देन। समझ में आ रहा है? डू यू यस मैम। अंडरस्टैंड? ओके। तीसरा है एक्यूरेसी, कोई भी काम करे तो उसमें एक्यूरेसी होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज फेवरेबल एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट अच्छा होना है। एनवायरनमेंट मीन्स क्लाइमेट की बात नहीं किया जाता है, लेकिन एटमॉस्फेयर जो हम क्रिएट करते हैं दूसरों के साथ, एनर्जी हम जो क्रिएट करते हैं दूसरों के साथ, उसकी बात किया गया है। देन मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियलिटी मीन्स उसका कॉन्फिडेंस, उसका वो कोई भी काम कर रहा है एक्यूरेसी से, वो कोई भी काम कॉन्फिडेंस से काम कर रहा है, तो उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए। लो कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए और ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए। देन प्रिजर्वेशन ऑफ कॉपीज और डुप्लीकेट मटेरियल। अगर किसके साथ उसने लेन देन किया है, तो वो जो डॉक्यूमेंट्स होता है, वो जो मटेरियल होता है, उसका जो डॉक्यूमेंट, फॉर एग्जांपल किसी को कितना पैसा दिया है, तो उसका डॉक्यूमेंट्स उसको प्रिजर्व करना चाहिए। समझ में आए? जैसे फॉर एग्जांपल आप फीस भरते हैं कि नहीं भरते? फीस भरते हैं ना, यस मैम। स्कूल कॉलेज में आप फीस भरते हैं, तो Yes, आपको ma'am. क्या दिया जाता है वापस, क्या दिया जाता है? फीस भरने के रिसीप्ट दी बाद जाती है उसकी। रिसिप्ट दी जाती है। तो रिसिप्ट वो क्या है, प्रूफ है ना। रिसिप्ट क्या है, वो प्रूफ है Yes. कि आपने पैसे भरे हैं, इतने डेट इस डेट पे इतने टाइम पे इतना आपने पैसा भरा है, वो आपके पास प्रूफ है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिजर्वेशन ऑफ कॉपीज। ओके। देन प्रोविजन फॉर द फीडबैक, कि फीडबैक होना जरूरी है, वेदर इट इज पॉजिटिव, वेदर इट इज नेगेटिव। समझ में आ रहा है? यस मैम। ओके, Yes, ma'am. so we shall stop here, we shall continue tomorrow. Okay. यस मैम। Okay. Yes, ma'am.